Hello students, last time we have studied about bamboo bridge in Assam and trolley in Ladakh. Now we are going to learn other areas students problems. Let us do यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है. Observe picture 1 and 2. In the picture, children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? इस एक्टिविटी में हमें पुली का यूज़ समझाया है. कैसे पुली की वजह से जो मुश्किल काम है वो आसान हो जाता है. पुली का मतलब ही उसके नाम के जैसा ही है. पुली मीन्स पुल, टू पुल माने के खींचना. पुली एक डिस्क टाइप आयन से बनी हुई चीज़ होती है. यह हमें कई सारे काम करने में यूज़फुल है. यहाँ पर एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि एक लड़का डायरेक्ट वेल से पानी निकाल रहा है और दूसरा लड़का पुली का यूज़ करके पानी निकाल रहा है. दोनों में से कौन सा आसान तरीका है पानी निकालने का? तो हम देख सकते हैं कि जो लड़का पुली का यूज़ करके पानी निकल रहा है उसे ज़्यादा आसान लगेगा. लुक अराउंड यू, where all do you see the use of pulleys? List them. With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. हम हमारे घर के आसपास भी या फार्म्स में देखते हैं कि ऐसे वेल्स में लोग पुली का यूज़ करके पानी खींचते हैं और पुली की हेल्प से हम कई सारी चीज़ें लिफ्ट कर सकते हैं. यह हमें इस एक्टिविटी से पता चलता है. नेक्स्ट पेज. We often need to go across some water bodies, so we use bridges. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक सीमेंट का ब्रिज रिवर के ऊपर बनाया गया है. मोस्ट ऑफ प्लेन एरिया में जब भी कोई वाटर बॉडीज़ को क्रॉस ओवर करना होता है तो सीमेंट का ब्रिज हम लोग बनाते हैं. आप सभी ने भी कई सारी जगह पर रिवर्स पर बने हुए सीमेंट ब्रिज को देखे होंगे. जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ऐसे सीमेंट ब्रिज हाईवे ऊपर बने हुए मिलते हैं. हमारे टाउन बालासिनोर और थर्मल के नज़दीक भी नर्मदा कैनाल के ऊपर बनाया गया सीमेंट ब्रिज हम अक्सर देखते हैं या क्रॉस करते हैं. सीमेंट ब्रिज जो होता है वह सीमेंट, ईंटें और लोहे के सलियों से बनाया गया हुआ ब्रिज होता है. बाम्बू ब्रिज से वो मजबूत ब्रिज होता है. So here are some questions. We have to give their answers. How is this bridge different from a bamboo bridge? तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो सीमेंट ब्रिज है वो बाम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट है. तो दिस ब्रिज is different from a bamboo bridge in the following way. It is made of cement, bricks and iron rods. On the other hand, a bamboo bridge is made of bamboo sticks and ropes. The cement bridge is much stronger than the bamboo bridge. The cement bridge can bear the weight of heavy vehicles like trucks, buses, etc. Whereas a bamboo bridge cannot bear heavy weight. Next question. How many people do you think can cross the bridge at one time? तो सीमेंट ब्रिज पे एक टाइम पे कितने सारे लोग क्रॉस कर सकते हैं? Many people can cross the bridge at one time, but the exact count depends on the length and the strength of the bridge. You have seen how children use different kinds of bridges to cross the river and other uneven areas to reach school.
If you had a chance, which bridge would you like to use? Why? I would like to use the cement bridge because it is stronger than and safer than the bamboo bridge. Next question. Do you have to cross any bridge on the way to your school? If yes, what is the bridge like? Yes, I have to cross a cement bridge on the way to my school. Find out from your grandparents what kind of bridges were there when they were young. At that time, there were only bamboo bridges and wooden bridges. Next page. Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. तो हमारे हाउस घर के आसपास कई सारे ब्रिज होते हैं जो वाटर बॉडीज़ पे बने हुए होते हैं। हमने इसको अक्सर देखा होता है। Where is the bridge over water or a road between two mountains or somewhere else? तो हमारे नज़दीक यहाँ पर रिवर के ऊपर वाटर पे बनाया हुआ ब्रिज है। तो the bridge is on the over the water. Who all use the bridge? It is usually by people on foot and also by vehicles and animals. तो जो हमारे नज़दीक में जो ब्रिज है वो सीमेंट से बनाया गया पक्का ब्रिज है और वहाँ पर कई सारे लोग बाय फुट भी जाते हैं या फिर व्हीकल्स लेके जाते हैं। एनिमल्स भी उस ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो सारे लोग उस ब्रिज का यूज़ करते हैं। Does the bridge seem to be old or is it new? वो ब्रिज है वो अभी कुछ सालों पहले बनाया गया वो ब्रिज है, इस वजह से वो ब्रिज है वो न्यू ब्रिज है। Find out what materials are used in making this bridge. List some of them. तो ये जो ब्रिज है वो सीमेंट ब्रिज है, सीमेंट से बनाया हुआ ब्रिज है। तो इसके अंदर हमने देखेंगे तो सीमेंट ब्रिज के अंदर मोस्ट ऑफली सीमेंट, आयरन रोड्स, आयरन रोड्स जैसी और ईंटें ब्रिक्स का यूज़ होता है। Draw a picture of the bridge in your notebook. Do not forget to draw the train, vehicles, animals or people who cross the bridge. तो हमें एक ब्रिज का पिक्चर बनाना है जिसके ऊपर हम व्हीकल्स, ट्रेन, एनिमल्स और पीपल को भी हमें ड्रॉ करना है। Imagine what difficulties there would be if the bridge was not there. अगर हम इमेजिन करें कि वो जो ब्रिज है वो उस रिवर पे वो ना बनाया गया तो हम रिवर कैसे क्रॉस करते और हमें वो बहुत ही मुश्किल होता। इस वजह से वो ब्रिज है वहाँ पर बनाना ज़रूरी था और ब्रिज की वजह से हमें रिवर क्रॉस करने में आसानी होती है और हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। अगर उस रिवर के ऊपर हम ब्रिज नहीं बनाते तो हमें बोट के ज़रिए उस रिवर को क्रॉस करना पड़ता। Let us find out some other ways by which children get to school. तो यहाँ पर वल्लम केरला में जो स्टूडेंट्स है वो कैसे अपने घर से स्कूल जाते हैं। तो इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। तो जो स्टूडेंट्स है वो वल्लम जो छोटी बोट है उसका यूज़ करते हैं स्कूल जाने में और ये बोट के अंदर बैठ के वो जो है अपने स्कूल जाते हैं। केरला वो ओशन के नज़दीक आया हुआ स्टेट है। वहाँ पर जो है जगह जगह पर जो पानी है ओशन का पानी जो है और वो भरा हुआ होता है और वहाँ पर वाटर बॉडीज़ भी ज़्यादा होती है। तो जो स्टूडेंट्स है वो छोटी बोट का यूज़ करते हैं। जो छोटी बोट है उसका नाम है वल्लम।